नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एथिक्स सीरीज यानी यूपीएससी जीएस 4 का पार्ट 3 वीडियो मैंने बनाया है और इसमें एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है। इसमें कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल भी दिया है और एग्जाम्पल्स जो हमारे अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग सिचुएशन में आते हैं, उन सब का एग्जाम्पल मैंने दिया है। आप इन एग्जाम्पल को पढ़िए और आपको पता चल ही जाएगा कि एथिक्स का असली मतलब किस सिचुएशन में क्या है। और इसके साथ-साथ इस वीडियो के अंत में आपके लिए बोनस पेज है जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ एथिक्स। आंसर: Ethics can even mean dramatically different things in different situations। यानी जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि एथिक्स अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग हो सकता है। इस सिचुएशन में हम क्या सोचेंगे, हमारे लिए क्या सही निर्णय है, ये उसी सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। For example, let us assume that a person goes to another person and says, I have just murdered my wife. Will you help me? Our immediate reaction, ethically right reaction, is to inform the police. But what if the person who heard that confession was a defense lawyer? Under the code of ethics for the lawyer, he is morally forbidden from going to the place। यानी जिसको कानून पता है, वो अगला कदम क्या लेगा उसे मालूम ही है। Thus, while ethics remains extremely important in governing behavior so that society can continue to function, it must be remembered that there is not always one clear definition of ethics or what is ethical. The decision must be made in the light of all the facts and in the light of what is most right in the given situation। यानी उस समय, स्थान, काल और पात्र तीनों को देखकर क्या सही डिसीजन है, क्या सबसे राइट है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी डिसीजन को हम लेंगे। अन एथिकल डायलेमा और ए मोरल डायलेमा यानी कंफ्यूजन, दोनों के बीच कंफ्यूजन या फिर कई सारे सिचुएशन में क्या क्या डिसीजन लेना है, उन डिसीजन के बीच जो निर्णय लेना है, जो द्वंद्व हमारे मन में रहता है, उसको डायलेमा कहते हैं। An ethical dilemma or a moral dilemma is a situation in which a person attempts to resolve an action or course of action against his or her moral or ethical values। In other words, an ethical dilemma is any situation in which guiding moral principles cannot determine which course of action is right or wrong। In a school, it could be a simple dilemma of looking at our classmates' answer paper during an exam। There are different types of ethical dilemmas: self-imposed dilemmas, world-imposed dilemma, and prohibition dilemmas। As the names imply, self-imposed dilemma relates to personal action of an individual। यानी एक इंडिविजुअल क्या करेगा, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके मन में ही ये डिसीजन हो रहा है, वो कैसे काम करेगा। हियर द इंडिविजुअल हैज टू मेक ए डिसीजन ऑन हिज ओन। वो खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा उसको।
In the world imposed dilemma, the choice is forced on him. वर्ल्ड इम्पोज्ड यानी उसको छोड़कर बाकी जितने सारे चीज है इस वर्ल्ड में वही उसके ऊपर प्रभाव डालेगा कि तू ये डिसीजन ले. In the last type, an individual might have to go beyond the prohibition, like going against the law because of circumstances. तीसरा टाइप है प्रोहिबिशन डायलेमास, यानी कोई लॉ अगर उसको कुछ यानी कोई नियम अगर उसको कुछ रोक रहा है कुछ करने से, वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है, उसके खिलाफ अगर वो कुछ डिसीजन लेता है तो उसके मन में जो द्वंद्व है उसको प्रोहिबिशन डायलेमास कहा जाता है. Next example, a family of three members was held captive. The gang leader decides to kill one family member. He gives one family member the choice of choosing which member should be killed. If he does not tell, all three would be killed. Whom will the family member choose? He cannot offer himself. He has to choose one among the other two family members. Whom will he choose? This is confusion. This is dilemma. This is mental turmoil. Another famous example is about a young man who has to choose between fighting for his country or taking care of old blind mother. His country is fighting a war against another conquering country. The government has asked all trained young men for service. The young man wants to go, but his mother, who is old and blind, is all alone. If anything happens to him in the war, there is no one to care for his mother. What should he do? Another real life example is the one incident which happened during the cloud burst in Bali in Uttarakhand. A mother was holding her two children in two hands when she was dragged to the river by the waves. She tried to hold on to her children, but after a time it became difficult for her to keep herself afloat without support. For the support, she had to let go of one child. If she did not, all three would be dragged by swirling waves. There are a few examples for ethical dilemma. Is there a right or wrong decision? How will we feel after making such decision? How will a mother live with her decision of deliberately letting one child die? In real life, people face many such instances where they have to take some kind of decision. People who have strong values and ethics instilled in them will be able to face such ethical dilemmas and try to take a decision which might be morally right. यानी इन सारे सिचुएशन में हमने ये देखा कि कोई ना कोई मुसीबत आ जाता है और उस मुसीबत में हम फंस जाते हैं. उस सिचुएशन में हम किस चीज को कितना इम्पोर्टेंस देंगे, किस प्रियजन को कितना अहमियत देंगे, ये हम सोच नहीं पा रहे हैं. उसी सिचुएशन में यानी मुसीबत के सिचुएशन में धैर्यवान होकर क्या करना है क्या नहीं करना है. वैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि क्रिकेट फील्ड में MS धोनी कभी-कभी इतने साइलेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन वो अपने पेशेंस के साथ जो डिसीजन लेते हैं, वो भारत के लिए बहुत कामयाबी लाए हैं। तो उसी सिचुएशन में हम सब कभी ना कभी पढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है, तो वो है एक्सपीरियंस। यानी हम जिंदगी में जितने सारे सिचुएशंस फेस करते हैं, वो सिचुएशंस ही हमें सिखाते हैं कि आगे आने वाले सिचुएशन को कैसे संभालना है। Many people would rather take an easy way out and end up feeling guilty all their lives. Some ethical dilemmas are the result of uncertainty about the kind of actions one should take to achieve the best outcome. This can be because the future results of each decision are not known, or because facts that can influence certain outcomes are not available.
For example, if the young man who has to decide between war and care for his old blind mother knew that he would survive the war, it would be easy for him to take a decision. यानी अगर उस यंगमैन को ये पहले से बोल दिया जाए या फिर उसे पता चल जाए कि वो उस युद्ध में जीत लेगा, तो उसको दोनों तरफ से फायदा, युद्ध में जीतेगा और अपनी माँ का ख्याल भी रख पाएगा। लेकिन ये उसे पहले से पता नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। वैसे मेरे ख्याल से अगर हम अपने परिवार को देखेंगे और युद्ध का आक्रमण हो रहा है, तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे। यानी हम युद्ध को भी खो देंगे और परिवार को भी खो देंगे। लेकिन अगर सारे परिवार के ख्याल हमारे मन में आएगा, दूसरों के माँओं का ख्याल, बेटियों का ख्याल हमारे मन में आएगा, तो हम युद्ध के लिए लड़ेंगे और जीत गए तो बहुत अच्छा, हम सबके लिए खुशी है। और अगर हार भी गए, तो भी हम इस दुनिया से वीरगति प्राप्त कर जाएंगे। ये मेरा ख्याल है। तो आपके मन में क्या है? क्या आप इन दोनों में से यंग मैन के लिए यानी वार में फाइट करना या फिर मदर का केयर करना, दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए? आपके मन में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कोई कड़ी नियम नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग अपने-अपने डायलेमास यानी कन्फ्यूजन यानी द्वंद को कैसे समाप्त करेंगे और कैसे उससे निपटेंगे। फिर भी कुछ नियम है, यानी कुछ नीति शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे राइट्स है, राइटियस थॉट्स है, जो कि हम अगर इनको अपनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा बहुत आसान हो सकता है अपने सिचुएशन में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व एन एथिकल डायलेमा। देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनल फीलिंग, यानी खुद के बारे में बाद में सोचना है, मास के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। Focus on acceptable standards. For example, stealing is considered against standard ethics. Evaluate the consequences. यानी अगर हम चोरी कर रहे हैं, हो सकता है ये हमारे लिए फायदा करे, लेकिन ये दूसरों के लिए हानिकारक है। तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें कुछ ना कुछ अगर कर रहे हैं, तो ये पूरे सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। करने का परिणाम यानी अंजाम के बारे में भी हमें सोच लेनी चाहिए। कंसिडर हु विल बेनिफिट, हु विल बी हर्ट, किसको अच्छा लगेगा, किसको दुख लगेगा, किसको कितना हानि पहुंचेगा। व्हाट व्हाट द डिसएडवांटेजेस आर, डिटरमाइन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म consequences। अगर ये मैं कुछ करूंगा अपने लिए, तो इसका परिणाम जल्दी क्या हो सकता है और आने वाले कल यानी भविष्य में दूर में क्या हो सकता है। हमें फोरसाइटेडनेस बनना पड़ेगा। आगे आने वाले परिणाम से हमें वाकिफ होना पड़ेगा। पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा। एनालाइज ऑल पॉसिबल एक्शंस, क्या क्या हो सकता है। डिसाइड which actions correspond to respect, honest, fairness and vulnerability of the people involved. Choose action which is the least problematic, यानी जो चीज बहुत कम हानि पहुंचाएगा या फिर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, हमें उसी को अपनाना चाहिए। मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन योर इवैल्यूएशंस, कंपेयर एंड रिकॉन्साइल द आइडेंटिफाइड consequences एंड एक्शंस। दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। अगर कोई आप में से इन्वेस्ट करना के लिए सोच रहा है, यानी शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, हम यह देखते हैं कि कौन सा कंपनी भविष्य में सर्वाइव करेगा या फिर उसका शेयर वैल्यू बढ़ेगा। उसी कंपनी में अगर हम अभी से इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए वो फायदा दे सकता है। उसी तरह जिंदगी भी एक कंपनी है, यानी एक स्टॉक मार्केट की तरह भी है। अगर जिंदगी में हमें कुछ ना कुछ भविष्य में अच्छा पाना है, रिटर्न पाना है, तो हमें धीरे धीरे करके छोटा से ही सही अच्छे चीज़ों को इन्वेस्ट करनी चाहिए। कोई बुरा अगर इन्वेस्ट करेगा, वो कहते हैं ना, आज यू सो सो यू रीप। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो के बोनस पेज में मैंने आप लोगों के लिए जो रखा है, वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आइए देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। ड्यूरिंग हिज टाइम as Prime Minister, Lal Bahadur Shastri laid the foundation stone for Bal Vidya Mandir, a prestigious Lucknow school, on November 19, 1964. In November 1964, he opened the Central Institute of Technology campus in Tharamani, Chennai. In 1965, he opened the plutonium reprocessing plant in Thrombey. Shastri approved the development of nuclear explosives as suggested by Dr. Homi Jahangir Bhabha. Bhabha spearheaded the initiative by forming the study of nuclear explosions for peaceful purposes, Nuclear Explosive Design Project SNEPP. In November 1964, Lal Bahadur Shastri opened the Chennai Port Trust's Jawahar Dock and began construction on the Tuticorin port. Throughout his life, Shastri was known for his integrity and modesty. He received the Bharat Ratna posthumously, and a memorial called Vijay Ghat was established in Delhi in his honor. सो ये था आपके लिए बोनस यानी एक्स्ट्रा नॉलेज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, click on the like button, share it, and comment on it. What are the lacuna in my video? And please subscribe my channel Srikrishna Gurukul. Thank you very much. Have a nice day.